Good evening, everyone. Now, we had covered till the classification of monohaloalkanes. Today, a very small portion, a very small part, classification of dihaloalkanes as geminal and vicinal dihalides. We will discuss about that, and then we will move on to discussion of nature of carbon halogen bond. So, let's first see the classification of dihaloalkanes. Dihaloalkanes, and this classification is restricted to the compounds which have similar halogen atom. Dihaloalkanes with similar halogen atoms. So here we have two types: geminal dihalides and the second is vicinal dihalide. I believe geminal dihalide and vicinal dihalides, the term geminal and vicinal are not new for you. We have been repeatedly using it since almost past 2 months. 2 महीने से कई बार आया है geminal, vicinal. So can you tell me what is meant by geminal? Geminal का मतलब क्या हुआ? Similar group bonded on same carbon atom, then it is geminal. And if the similar group are bonded on adjacent carbon atoms, it is vicinal. I will just be writing one example for both of them, like this is geminal dichloride, right? In the common system, these geminal dihalides are named as alkylidene halide. This is the common name, alkylidene halide. So based on this, can you tell me what should be the name of this compound? Ethylidene chloride, not dichloride, it is ethylidene chloride. While vicinal dihalides in the common system, they are named as alkaline dihalides. In common system, they are named as alkaline dihalide. So based on this, let's have one example. What will be the common name of this? This is ethylene dichloride. Ethylene dichloride, right? Simple. What will be the IUPAC name? Harshit, what will be the IUPAC name of this? One dichloroethane, and IUPAC name of this is 1,2-dichloroethane. 1,2-dichloroethane. Simple. Okay. Now let us understand nature of carbon halogen bond. So for understanding carbon halogen bond, let me first show you a carbon halogen bond here. Right now I have taken this carbon atom as sp3 hybridized only. sp3 hybridized carbon, ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है. ये बॉन्ड्स मैंने वैकेंट दिखाया है. You can consider hydrogen or any alkyl group in place of this. कोई भी alkyl group और hydrogen consider कर सकते हो. Now one thing is very clear, that we have a large electronegativity difference between carbon and halogen.
कार्बन और हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती है. विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Halogen. Halogen is more electronegative. 17th ग्रुप के एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ फ्लोरीन. ऑन पॉलिंग स्केल इट हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4. ठीक है. तो अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इट विल विथड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, राइट? तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जाएगा? हाइड्रोजन एटम की तरफ. एज अ रिजल्ट ओवर हाइड्रोजन एटम the electron cloud density will be more. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा. किसके पास? हाइड्रोजन एटम के पास. सो हाइड्रोजन एटम विल bear a partial negative charge. एंड कार्बन एटम से तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए ना. इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर कार्बन इज कंपैरेटिवली लेस. तो कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए? पार्शियल पॉजिटिव. कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव ना होके पार्शियल पॉजिटिव. कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कब आते हैं? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ है. यहां पे इलेक्ट्रॉन जस्ट किसी एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, उसकी तरफ ज्यादा विथड्रॉन है, राइट? So that is why we have a partial negative and partial positive charges. Now whenever we have such positive and negative charge separation in the molecule, we say a dipole moment is created. और ये molecule कैसा होगा? Polar. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर. सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? पोलर नेचर का है. Thus, carbon-halogen bond is polar in nature. इसका नेचर कैसा है? पोलर. And it simply means that haloalkanes and haloarenes are polar compounds. है ना? They will have certain dipole moment and they are polar compounds. If we talk about the different halogen atoms, आपको पता है 17th ग्रुप में, in 17th group the position of halogen atoms is like this: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Right from second period. पहला पीरियड तो खाली होता है, सेकंड पीरियड से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट? और जैसे जैसे आप पीरियड में ग्रुप में जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हो, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, है ना? इसका मतलब ये हुआ दैट फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट इन साइज एंड आयोडीन इज बिगेस्ट इन साइज. एज अ रिजल्ट, नाउ टेल मी ऑर्डर ऑफ bond length. Let's first see this order of bond length. So I am writing carbon fluorine bond, carbon chlorine bond, carbon bromine bond and carbon iodine bond. Tell me which one will have the shortest bond length and which one will have the longest bond length. What will be the order of bond length of these कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स? सबसे छोटा वाला बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CF, जिसका साइज सबसे स्मॉल है. अच्छा, क्लोरीन एटम इज बिगर देन फ्लोरीन, तो इसका बॉन्ड लेंथ CF से ग्रेटर होगा. ब्रोमीन एटम इज अगेन बिगर इन साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन, सो दैट इज व्हाई इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा. और सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का. Order of dipole moment.
ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? Yes, electron cloud will always shift towards the halogen atom. So my question is that when the charge separation is there, a dipole moment is also created. ये बॉन्ड पोलर है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट होगा. अब इनको कंसिडर करते हुए आपको बताना है that what will be the order of their dipole moment. हाँ, इसका अपोजिट होगा. ओके, so you mean to say carbon fluorine bond, carbon chlorine bond, carbon bromine bond and carbon iodine bond. You mean to say carbon fluorine will have the highest dipole moment? इससे कम कार्बन क्लोरीन का, उससे कम कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? कार्बन आयोडीन बॉन्ड का. राइट? ओके. ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट बॉन्ड एनर्जी. ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी भी डिस्कस कर लेते हैं. बॉन्ड एनर्जी समझते हो? एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड. 1 मोल किसी भी पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड इज बॉन्ड एनर्जी. नाउ टेल मी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. बॉन्ड लेंथ अगर कम हुआ, you need more energy to break the bond, right? That is why bond length and bond energies are inversely proportional. So based on that, what will be the order of bond energy? Same like this. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट, उससे कम कार्बन क्लोरीन, उससे कम कार्बन ब्रोमीन और सबसे लीस्ट कार्बन आयोडीन. ये याद रखना that carbon iodine bond being the longest bond or having the highest bond length is easiest to break. सबसे इजी ब्रेक करना है कार्बन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, क्योंकि आगे जाके इसी चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस आयोडीन एज अ वेरी बेटर लिविंग ग्रुप. जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो द सेम थिंग इज रिलेटेड ओवर देयर ऑल्सो. फाइन. सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. चार्ज सेपरेशन, that is why dipole moment come into existence, that is why the bond is polar in nature, and we have discussed the order of bond length, the order of dipole moment and also order of bond energy. The order of bond energy also is similar to this. One thing more I would like to discuss. आप देखोगे NCERT में आपको एक टेबल दी हुई है डाइपोल मोमेंट की. आप देखिएगा ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स दिए हुए हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ दी हुई है, उनकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है और उनकी डाइपोल मोमेंट्स भी दी हुई है. देयर इज नो नीड ऑफ मगिंग अप वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी. कोई जरूरत नहीं है कि आप वो वैल्यूज को रटा मारो. रटा मारने की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट नीड अ कंपैरिजन. आपको क्या पता होना चाहिए कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इस रेस्पेक्ट. ओके ओके. नाउ जस्ट अ मिनट. वन मोर एडिशनल, हर्षित, one more additional point here you need to keep in mind related to the order of dipole moment. देखिए एक्चुअली ये जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है ना, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट. ये आपने अपने एक्सपेक्टेशन से कहा कि एज फ्लोरीन इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, राइट? बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के साथ साथ फ्लोरीन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल इन एटॉमिक साइज. फ्लोरीन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है और स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से क्या है कि स्मॉल वॉल्यूम में
जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल आल्सो बी देयर, राइट। उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से दिस CF बॉन्ड डू नॉट हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होता है? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इसका होता है। This carbon chlorine bond is having the highest dipole moment. Then after this is number 1, this is number 2, and then this is 3 and 4. Okay. What is the reason behind it? Why carbon fluorine dipole moment is not the highest one? Because of very small size of fluorine atom, we have electron electron repulsion also. So that causes the dipole moment of carbon fluorine to decrease slightly, and the highest dipole moment is then of carbon chlorine bond. Fine. Now let's move on to major part of the chapter. Till now we had been going through building just a foundation, a base for the chapter. Now the major part of the chapter starts from here. Let's discuss प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल सी प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल सी प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। सो इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इज फ्रॉम एल्कोहल्स। हेलोअल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम alcohols. You will be surprised to know that just from a single raw material, that is alcohol, a number of reagents are available to convert it into haloalkanes. Just from a single substrate. Substrate you understand? Organic molecule जिसमें change हो रहा हो, वो substrate हुआ। तो alcohol substrate से हेलोअल्केन्स बनाने के लिए नंबर ऑफ रिएजेंट्स आर अवेलेबल, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस ग्रूव्स प्रोसेसेस आई विल बी राइटिंग द जनरल रिएक्शंस। जनरल रिएक्शन लिखूंगा और जहां पे आप बोलोगे एग्जाम्पल, आई विल राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। या ऐसा करते हैं, एक जनरल और एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ग्रूव्स प्रोसेस में अल्कोहल, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। जैसे अल्काइल हलाइड्स या हेलोअल्केन्स को हम RX लिखते हैं, अल्कोहल को जनरल कैसे लिखते हैं? ROH। ROH ऑन रिएक्शन विद concentrated HCl in presence of anhydrous zinc chloride catalyst results into RCl and H2O. This method is specific for preparation of chloroalkanes. किसकी प्रिपरेशन के लिए है? क्लोरोअल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए। इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर मेथड को हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। इन दिस ग्रूव्स प्रोसेस यू कैन हैव सबस्ट्रेट एज प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सबस्ट्रेट क्या क्या चूज कर सकते हो? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl in presence of anhydrous zinc chloride catalyst gives chloroalkane and water as the byproduct. Reaction is very easy to understand. You can see OH and H from here gets removed as H2O and chlorine joins to the alkyl group. Overall, it is a substitution reaction. OH is getting replaced by chlorine. आगे जाके इसी चैप्टर में और बेटर वे में समझ में आएगा that this is nucleophilic substitution. कैसा सब्स्टिट्यूशन है ये? न्यूक्लियोफिलिक।
क्योंकि यहाँ HCl से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है Cl माइनस, and that Cl minus nucleophile is replacing OH. So this is nucleophilic substitution reaction. उसके एक स्टेप और आगे पढ़ोगे इवन मैकेनिज्म तो पता चलेगा ये SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, लेकिन उसमें अभी टाइम है, वो भी आगे आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। अभी पहले हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ very simple alcohol CH3 CH2 OH on reaction with concentrated HCl and in presence of anhydrous zinc chloride catalyst. So OH will get replaced by chlorine. It will result into formation of chloroethane and H2O. From ethane, ethanol, you are getting chloroethane and water, right? Another, one more example, let us take this as this is secondary alcohol. We have taken this as secondary alcohol, and this upon reaction with concentrated HCl in presence of anhydrous zinc chloride catalyst gives can you give the IUPAC name of this compound? This as well as this. That is 2-chloropropane and this is propane 2-ol. Propane 2-ol. So propane 2-ol to 2-chloropropane. Now an interesting part related to this Groves process is that here the mixture of these two reagents, that is concentrated HCl and anhydrous zinc chloride catalyst, this is called Lucas reagent. What do we call it? Lucas reagent. प्रोसेस कौन सा है? ग्रूव्स प्रोसेस, और यहां पे जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है? ल्यूकास reagent. And this Lucas reagent is very helpful in Lucas test for distinguishing primary, secondary and tertiary alcohol. Lucas reagent is very helpful in distinguishing primary, secondary and tertiary alcohol, and this is popular as Lucas test. कैसे किया जाता है ये टेस्ट? तो एक्चुअली ये जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, ये कैसा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए द हाईएस्ट रिएक्टिविटी इज पोजेस्ड बाय टर्शियरी अल्कोहल. सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? टर्शियरी अल्कोहल की. In fact, tertiary alcohol, when treated with concentrated hydrochloric acid, अगर आप कैटलिस्ट ना भी यूज करो, at room temperature itself, it forms the product. The reaction takes place at room temperature itself. समझ रहे हो? जैसे सपोज अगर मेरे पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, उस टर्शियरी अल्कोहल में मैं जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगा या तो ल्यूकास रिएजेंट डालूंगा, इस रूम टेम्परेचर पे ही इमीडिएटली मुझे रिएक्शन कंप्लीटेड मिलेगा.
कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ? तो आई विल बी गेटिंग टर्बिडिटी इन द टेस्ट ट्यूब. अल्कोहल्स कैसे होते हैं? क्लियर सोल्यूशन. दे आर मिसिबल इन वाटर, इट इज क्लियर सोल्यूशन. ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, शेक करो, immediately you will get turbidity. If you are getting turbidity immediately, that means it is tertiary alcohol. रूम टेम्परेचर पे ही अगर वो टर्बिड हो गया, तो टर्बिड हुआ इसका मतलब वो क्यों टर्बिड हुआ? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज क्लोरो अल्केन. क्लोरो अल्केन प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से वो टर्बिड हुआ है, राइट? क्योंकि क्लोरो अल्केन्स आर नॉट मिसिबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? टर्बिड. जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी के केस में एट रूम टेम्परेचर यू विल नॉट बी ऑब्टेनिंग टर्बिडिटी. आपको रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं मिलेगी. इसमें क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल के केस में यू विल हैव टू वार्म इट. सपोज आपने वार्म करना स्टार्ट किया, मे बी यू कैन गेट टर्बिडिटी इन 5 और 10 मिनट्स. और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल के केस में यू नीड मोर हायर टेम्परेचर एज वेल, मोर अमाउंट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड इन ऑब्टेनिंग टर्बिडिटी इन द टेस्ट ट्यूब. दैट मीन्स फॉर रिएक्शन टू कंप्लीट. ठीक है? तो अब सिचुएशन जरा समझना. मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं. इन 3 टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐसे घुमा घुमा के आपको अल्कोहल सॉल्यूशन दे दिया. ठीक है? एक मैंने अर्जुन को दे दिया, एक सनी को दे दिया और एक हर्षित को दे दिया. फाइन. नाउ फर्स्ट मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन यू ऐड ल्यूकास रिएजेंट टू दिस टेस्ट ट्यूब एंड सी व्हाट हैपेंस. टेक योर ऑब्जर्वेशन. अर्जुन ने ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, उसे तुरंत टर्बिडिटी नहीं मिली. उसने मुझे कहा कि सर नथिंग हैपेंड, देयर इज नो टर्बिडिटी, व्हाट शुड आई डू? मैंने बोला यू वेट. इसके बाद सनी आया, सनी एडेड ल्यूकास रिएजेंट टू द टेस्ट ट्यूब और जैसे ही उसने ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, रूम टेम्परेचर पे ही टर्बिडिटी अपीयर्ड. व्हिच अल्कोहल इट शुड बी हैविंग? टर्शियरी अल्कोहल. जैसे ही सनी ने टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, इमीडिएटली द टर्बिडिटी अपीयर्ड. मतलब कौन सा अल्कोहल होना चाहिए उसमें? टर्शियरी अल्कोहल, है ना? कोई भी टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए, राइट? फाइन. उसके बाद हर्षित आया, सनी को कंक्लूजन भी मिल गया. सनी ने बोला सर टर्बिडिटी अपीयर्ड, यस दिस इज टर्शियरी अल्कोहल. फिर हर्षित आया, हर्षित एडेड ल्यूकास रिएजेंट, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. फिर मैंने कहा हर्षित से, नाउ हर्षित यू एंड अर्जुन, बोथ ऑफ यू start, hold your test tube with the test tube holder and start hitting over it Bunsen burner flame. दोनों ने टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट किया और बंसन बर्नर पे हीट करने लगे. 5 मिनट बाद अर्जुन कहता है सर टर्बिडिटी अपीयर्ड. हर्षित को अभी तक टर्बिडिटी नहीं मिला है. अर्जुन सेड सर टर्बिडिटी अपीयर्ड. हर्षित अभी भी हीट कर रहा है. तो विच अल्कोहल अर्जुन शुड बी हैविंग? सेकेंडरी. वेरी गुड. और उसको तो काफी टाइम लगा, 10-15 मिनट्स बाद ही इज शोइंग सर आ गया टर्बिडिटी. दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, है ना? सो दिस complete set of experiment is actually based on reactivity of 3 different types of alcohol. इससे क्या पता चलता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, फॉर न्यूक्लियोफिलिक substitution of alcohol, order of reactivity बोलो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज tertiary alcohol is most reactive, then less than that is secondary alcohol,
and the least reactive one is primary alcohol. Got it? Easy है ना? तो Groves process में what we understood? Groves process में we understood that alcohol on reaction with concentrated hydrochloric acid in presence of anhydrous zinc chloride catalyst gives chloroalkane and H2O. This is a simple nucleophilic substitution reaction. OH is getting replaced by Cl minus. Then in this one step ahead, we discussed the same reaction for primary, secondary and tertiary. Tertiary में मैंने ये भी कहा कि tertiary में हमें catalyst की भी जरूरत नहीं है. Just by adding concentrated hydrochloric acid, you will have turbidity at room temperature. ठीक है? फिर ये भी कहा कि this reagent concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is Lucas reagent, helpful in Lucas test, which distinguishes primary, secondary and tertiary alcohol. This distinguishing primary, secondary and tertiary alcohol is based on reactivity of alcohols. Tertiary वाला room temperature पे ही turbidity दे देगा, secondary alcohol को heat करने पे turbidity मिलेगी, and primary alcohol will require more high temperature, ज़्यादा time लगेगा for turbidity to appear after addition of Lucas reagent. Fine? Okay. तो अभी जो हमने डिस्कस किया ये था स्पेसिफिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन्स. किसके लिए था? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन्स. लेकिन हमें तो हेलोअल्केन्स इन जनरल डिस्कस करना है ना, आगे के हेलोजेंस के लिए भी डिस्कस करते हैं. चलो, सनी सोच रहा है बैठा बैठा सर क्या प्रॉब्लम है, क्लोरोअल्केन्स के लिए हमने HCl यूज किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्यों ना ब्रोमो अल्केन के लिए हम HBr यूज कर ले, हाइड्रोब्रोमिक एसिड. और सही है, करते भी हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अल्कोहल की रिएक्शन किससे की जा रही है? सोडियम ब्रोमाइड या इसकी जगह पोटेशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब क्या होता है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं इन सीटू प्रोडक्शन ऑफ HBr. NaBr and H2SO4 will be producing HBr. In situ का मतलब हुआ in the reacting mixture itself. रिएक्शन में ही NaBr और H2SO4 के रिएक्शन से क्या बन जाएगा? HBr. और वो HBr फिर क्या करेगा? अल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो OH will be replaced by ब्रोमीन. OH का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? ब्रोमीन से हो जाएगा. एंड बाई प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? एक तो H2O तो मिलेगा ही, और H2O के साथ आपको मिलेगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट. सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट की जगह पे आपको सोडियम सल्फेट भी मिल सकता है. फाइन. Na2SO4 और NaHSO4 both can be opted. इस रिएक्शन का ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जहां नाम आएगा ना वहां पे मैं आपको बताऊंगा. नेम्ड रिएक्शन कैटेगरी में आता है. इसमें जस्ट फ्रॉम अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लेकिन इसमें इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है? इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है कि हमने HBr को डायरेक्ट ना यूज करके इन सीटू प्रोड्यूस किया है. डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली ऐड HBr, लेकिन HBr अगर आप डायरेक्ट एडिशन करोगे ना तो आपको यील्ड बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगा. और HBr को अगर इन सीटू प्रोड्यूस करोगे तो यू विल बी गेटिंग द यील्ड इन बेटर अमाउंट. प्रोडक्ट आपको अच्छे अमाउंट में ऑब्टेन मिलेगा इन रिएक्टिंग मिक्सचर.
मतलब हमने रिएक्टेंट को डाल दिया, रिएक्शन शुरू हुआ और उस रिएक्शन मिक्सचर में ही HBr बना, तो दैट इज नोन एज इन सीटू। फाइन। इसका अपोजिट है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब हुआ बाहर से ऐड करना, इन सीटू का मतलब रिएक्टिंग मिक्सचर में ही फॉर्म हो जाना। अब शौर्य बैठा बैठा क्या सोच रहा है पता है? शौर्य सोच रहा है कि सर आयोडो अल्किन तो इसके जैसा ही होना चाहिए। लेट अस टेक NaI या Ki एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ अल्कोहल, तो वो भी HI फॉर्म कर लेगा, नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अल्कोहल के साथ NaI और Ki यूज कर सकते हैं, but we cannot use concentrated sulfuric acid. Here we will have to use phosphoric acid. Now there is a reason for this and it forms a very important question from board point of view. बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपके NCERT के इंटेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है that in the preparation of iodoalkane from alcohol using NaI or Ki, सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमें आयोडो अल्केन अल्कोहल से प्रिपेयर करनी है तो सोडियम आयोडाइड के साथ हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज कर सकते। इसका रीजन ये है कि सोडियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो ये HI फॉर्म तो करेगा, लेकिन HI फॉर्म करने के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये जो HI फॉर्म होगा रिएक्शन में, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू आयोडीन एंड वाटर, है ना? आपको रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? HI चाहिए। रिएजेंट रिक्वायर्ड इज HI, लेकिन HI तो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, लेकिन ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। HI फॉर्म होगा और दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू आयोडीन, और आयोडीन के साथ तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा नहीं। आयोडीन अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना देगा, but it will not be reacting with it, right? So that is why concentrated sulfuric acid is not used in the preparation of iodoalkane. ये याद रखना। इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल आयोडाइड Ri प्लस वाटर प्लस Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। बैलेंस नहीं किया है मैंने, आप चाहो तो इसको बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हो, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, HBr को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दे पाता। क्या? NaBr और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलग आप रिएक्शन करो और फिर उसको हीट भी करो, राइट? तो ब्रोमीन नहीं, तो भी ब्रोमीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होता है ना, उसमें वन फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने के जो पावर है इसका, वो इतना ज्यादा नहीं कि वो HBr को ऑक्सीडाइज कर पाए। लेकिन HI में क्या है? HI बॉन्ड तो वीक होगा बहुत, HI बॉन्ड इज वीक। अगर आप HCl, HBr और HI को कंसिडर करो तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड किसका होगा? HI का। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसीलिए HI को वो ऑक्सीडाइज कर पाएगा।
तो यहां पे आप इसको इस तरह से नोट कीजिएगा, concentrated H2SO4 is not used with Ki or NaI while preparing alkyl iodide from alcohol और उसका रीजन मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया है, बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस HI2I2। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज बीन मेनी अ टाइम्स आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। 1 मार्क का ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन गिव रीजन में पूछा जाता है व्हाई concentrated sulfuric acid cannot be used with Ki or NaI in preparation of alkyl iodide from alcohol। तो इसका आंसर यही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस HI2 आयोडीन। फाइन, इजी, सिंपल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएजेंट। ये तो मैंने आपको हैलोजन एसिड एक रिएजेंट डिस्कस किया। अभी तक मैंने जो रिएजेंट डिस्कस किया है वो कौन सा था रिएजेंट? हैलोजन एसिड HX, जिसमें HCl डिस्कस किया, HBr डिस्कस किया, HI का भी यूज डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट रिएजेंट। द नेक्स्ट रिएजेंट आई विल टेक इज अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। क्या बोलते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 is thionyl chloride. This forms alkyl chloride, sulfur dioxide gas and hydrogen chloride gas। इस पर्टिकुलर रिएक्शन से भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। एक बार नहीं, कई बार रिपीटेडली पूछा गया, ईयर्स आफ्टर ईयर्स इट हैज बीन आस्क्ड, और वो ये है, एक्चुअली दिस थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट reagent preferred for preparation of chloroalkane from alcohol। अल्कोहल से अगर क्लोरोअल्केन बनाना हो तो इसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। Thionyl chloride is the best preferred reagent for preparation of chloroalkane from alcohol। और उसका रीजन है ये, यहां पे क्या है, बाई प्रोडक्ट्स आर escapable gases and leaves only pure alkyl chloride। इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट कैसे हैं? एस्केपेबल गैसेस, गैसेस फॉर्म में होने की वजह से रिएक्टिंग मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या? बचेगा ओनली दिस, द प्योर अल्काइल क्लोराइड, राइट। दैट इज व्हाई thionyl chloride is best preferred reagent for preparation of alkyl chlorides। अल्काइल क्लोराइड्स के प्रिपरेशन के लिए दिस इज द बेस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट। 1 मार्क के क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन आपको पता है कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, अभी ऐसा पैटर्न नहीं है सीबीएसई में। आपको या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं डाल दिया जाएगा, या 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस में डाल दिया जाएगा। इसका वेटेज 1 मार्क का ही होगा, लेकिन ये पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग और गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग।
जिसमें होगा थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन्स और अल्काइल क्लोराइड। या ये क्वेश्चन भी, concentrated sulfuric acid cannot be used with NaI or Ki while preparing alkyl iodide from alcohols। एक एक मार्क का ही क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा हुआ है। Another reagent, now I am taking phosphorus halides as the reagent for preparation of haloalkanes from alcohol। So alcohol ऑन रिएक्शन विथ, पहले मैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड ले रहा हूं PX3, लेकिन इस PX3 में हैलोजन कैन ईदर बी क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या होगा? अगेन OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन and it will form H3PO3। फाइन। आप यहां पे बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 molecules or 3 moles of alcohol giving 3 moles of alkyl halide। ठीक है, this will work for the preparation of chloroalkane and bromoalkane both। क्लोरोअल्केन के लिए यहाँ पे आपको PCl3 लेना पड़ेगा और ब्रोमोअल्केन के लिए यू विल हैव टू टेक PbR3। इसी फॉस्फोरस हैलाइड में यू कैन ऑल्सो टेक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। सो PCl5 के साथ इट विल बी फॉर्मिंग RCl, दैट इज क्लोरोअल्केन, प्लस POCl3, that is phosphonyl chloride, plus HCl। So alcohol upon reaction with phosphorus pentachloride will be giving chloroalkane, phosphonyl chloride, please write down the name also, phosphonyl chloride and HCl। And the last one, alcohol upon reaction with red phosphorus and halogen। यहां पे क्या होगा? रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के रिएक्शन से ना ये PCl3 रिएक्टिंग मिक्सचर में ही फॉर्म हो जाएगा। दिस विल कॉज इन situ प्रोडक्शन ऑफ PX3। दैट मीन्स अगेन हियर X कैन बी ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या मिलेगा आपको? RX। नो नीड ऑफ राइटिंग बाई प्रोडक्ट्स हियर, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इसमें बस आपको मेन प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत है। फॉस्फोनिल क्लोराइड, फॉस्फोनिल क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलिए, now again a twist, a very important question, again repeatedly asked in the board examination। बार बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमने ये हेलो अल्केन की प्रिपरेशन डिस्कस की है और जितने भी रिएक्शन हमने डिस्कस किए उन सभी रिएक्शन में क्या था? अल्कोहल का OH was getting replaced by the halogen, right? तो क्या हेलोएरीन के प्रिपरेशन के लिए कैन वी गिव सिमिलर रिएक्शन वेयर OH ऑफ फिनॉल विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन? जिस तरह से
अल्कोहल के OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हैलोजन से किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्या मिला हमें? हेलो अल्केन्स। वैसे ही हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन के लिए क्या ये कंसिडर कर सकते हैं? फिनॉल ऑन रिएक्शन विद दीज रिएजेंट्स, जो भी रिएजेंट डिस्कस किए, गिव्स क्लोरोअरीन और हेलो अरीन। हो सकता है ऐसा? हाँ या ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या प्रिपेयर किया? हेलो अल्केन्स। कैसे प्रिपेयर किया? अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। हर एक रिएक्शन में क्या हुआ? अल्कोहल गेटिंग रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, और क्या मिला? हेलो अल्केन्स। तो क्या हेलो एरीन के प्रिपरेशन में कांट वी स्टार्ट विथ फिनॉल? फिनॉल से शुरू नहीं कर सकते? वही रिएजेंट्स ले लेंगे और उसके बाद हेलो एरीन मिल जाएगा। होगा? नहीं होगा? पार्शियली करेक्ट। ARX मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे? क्यों नहीं मिलेगा वो समझिए। फिनॉल में you know very well that रेजोनेंस इफेक्ट इज सीन, और कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है यहां पे? प्लस आर इफेक्ट, राइट? तो इस प्लस आर इफेक्ट की वजह से देखो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या आ गया? डबल बॉन्ड। देयर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। नहीं? मुझे ये बताओ कि अल्कोहल में तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है ना, और सिंगल बॉन्ड तो इजीली ब्रेक होता है। क्या ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा? नहीं ना। दैट इज व्हाई हेलो अरीन्स will not be formed from phenol by the similar reactions। ठीक है? आप देखना NCERT में जहां पे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीट होता है वहां पे एक छोटा सा पॉइंट दिया होगा that we cannot prepare haloarine from phenol in the similar fashion as in phenol we have a partial double bond character between carbon and oxygen। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में कैसा कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। दूसरा, हर्षित ने जो कहा sp2 वो कह रहा था, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहां पे ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जबकि यहां पे ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये वाला बॉन्ड छोटा होगा, स्मॉल, बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉल, और बॉन्ड लेंथ कम हुआ तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक? तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फाइन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव मोर प्रिपरेशन methods for haloalkanes that we will be discussing in our next session. Fine.